Let us begin with the session. I am Atul Suagya. Atul sir. Very good teacher. My simple introduction is that. Having a good command over the direct taxation, especially. And now, when we heard the word income tax, अब तो पहले यहाँ ही बैठती थी. Okay. Yeah. When we heard the word income tax, last batch, आवाज आ रही है? Okay. Am I audible? Yeah, perfect. When we heard the word income tax, it taxes the income. Very funny law. Yeah. Because if anybody asks you, okay, please define the income tax. So what do you mean by income tax? आपको एक चीज पता है? When the people ask you the question, what do you mean by that? So whatever you mean, you should write. आपके माइंड में जो भी है, it is a full toss given to you. What do you mean by that? तो मीन आपके पास जो है वही देने का ना. Yeah. My question is, what do you mean by income tax? It is a tax on income is equal to income tax. Yeah, tax on income. Two fundamental parallel words are going parallelly: tax and income. When I heard the word tax, it is not TEX, it is TAX, tax. You tell me, to levy the taxation, it's a prerogative, it's a power of the central government, state government, Supreme Court, MLA, Taluka Panchayat, ya Sarpanch. Yeah, who levies the tax? Who has the authority to levy the tax? Concrete answer. Yeah. Central government. Okay. Yani ki central government always makes the law. You mean to say? So why Supreme Court is there? Chalo, let me clarify. Because we are now the students of the professional course. We should be 100% clear about where exactly the law is made. Yes. You tell me. We have the judiciary system from तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना यहाँ न्याय मंदिर अब तो शिफ्ट हो गया दिवालीपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके ऊपर हाई कोर्ट है गांधीनगर रोड पे हम निकलते हैं हाई कोर्ट भी है गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद एंड सुप्रीम कोर्ट तो दिस इज आवर जुडिशियरी बॉडी एंड वन साइड इज आवर पार्लियामेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ये साइड हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ये साइड हमारी जुडिशियरी अथॉरिटी है तो यू टेल मी लो आपने ये बताया क्या सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ हु कैन मेक द लॉ पार्लियामेंट कहां से आओगे पार्लियामेंट कहां से आओगे ओके हमारे ये तो प्रैक्टिकली वहां से आना चाहिए ये फर्स्ट टाइम यहां से आया हाँ Sir, Parliament can make the law. Okay, Parliament can make the law. Okay, very nice. Parliament can make the law. So, what is the difference between central government and Parliament? Huh? Parliament can make the law. Parliament is a law making. Parliament में आपको पता है ना दो हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. क्या बोलते हैं उसको? राज्यसभा एंड लोकसभा. दो हाउस है वहाँ. ये दोनों हाउस में से बिल पास होता है, इट बिकम्स अ लॉ. इस तरह से यहाँ मेरे स्टेट में भी दो हाउस है, विधानसभा एंड विधान परिषद. यहाँ एमएलए बोलते हैं ना, एमएलए कार के पीछे लिखा होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलए तो जो स्टेट लॉ बनता है यहाँ बनता है गांधीनगर, सेंट्रल लॉ है वो पार्लियामेंट में बनता है. तो दिस आर द टू लॉ मेकिंग अथॉरिटी. यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फादर ऑफ ऑल द लॉज. इट इज द फादर ऑफ ऑल द लॉज. ऑल द लॉज फ्लो फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. No laws
can be ultra virus to the Indian Constitution. If it is against, if it is not in line with the Indian Constitution, it is treated as ultra virus, and it is invalid law from day one. Ab initio void. Ab initio void means from day one it is void. Hello. यानी कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में लॉ नहीं है, उसकी बाउंड्री में नहीं है, उससे बाहर चल रहा कोई भी लॉ, it is invalid law. So I can say in the legal environment, the father of all the laws is the Indian Constitution. Indian Constitution comes first. तो जब भी वैकेशन मिले ना आपको, वैकेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, it is divided in articles. As a professional, it is our prime responsibility. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं और तब तक मैं बोलूँ कि मुझे लॉ पता है, तो वो सब थोड़ा इमेच्योर आंसर है, क्या? और जब भी वैकेशन में जब भी टाइम मिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार गो थ्रू करने का, क्योंकि पता चला ना लीगली क्या इसमें, एवरीथिंग इज डिफाइंड, एंटायर कवरेज इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोई ने फड़ा को मारो तो ख्याल आओ जो लीगली क्या फड़ा का, या माय क्वेश्चन इज नहीं आपको नहीं मारो, डोंट वरी. नहीं, आपको लो पता होना चाहिए कि अगर एक दिया तो क्या है, दो दिया तो क्या है, या एट दैट मोमेंट हमको कंप्लीटली पता होना चाहिए. माय क्वेश्चन इज तो अभी तक के डिस्कशन में मैंने एक ही लाइन रिलीज की है यहां से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फादर ऑफ ऑल द लॉज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी है 245 आर्टिकल, क्या कि no tax can be collected by the government except by authority of the law. By authority of the law. लॉ की अथॉरिटी नहीं है तो कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती. ऐसा भारत के बंधारण में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन हैज टू रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इवन सुप्रीम कोर्ट हैज टू रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता है ये पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली एंड सुप्रीम कोर्ट, ये तीन का बर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से हो रहा है. ये तीन का फादर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन आर्टिकल्स. नॉर्मली लॉ इज डिवाइडेड इन सेक्शन, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन आर्टिकल्स. क्या? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल लाइन ये है, क्या? नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ. जब तक लॉ में से अथॉरिटी ना मिले तब तक कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी. तो लॉ बनाना मैंडेटरी हो गया, तो लॉ बनाने की जब मैटर आती है तो सर अब कौन बनाएगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्टीशन है. सेंट्रल लिस्ट दिया है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है. और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर डिफरेंट. आप देख रहे हो ना, सेंट्रल एंड स्टेट जब सामने होते हैं तब आप देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो ममता एंड मोदी. यानी कि जब सामने चलते हैं तो दोनों अपनी अपनी तरह से किंग ही है अपने अपने एरिया में. वो अपने स्टेट की महारानी है, ये नेशन का है. माय क्वेश्चन इज, स्टेट को भी इक्वल पावर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. जितना पावर सेंट्रल को दिया, जितना पावर पार्लियामेंट के पास है, उतना ही पावर गांधीनगर फ्लो हो रहा, स्टेट लेजिस्लेशन में फ्लो हो रहा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, as per my understanding, it is a federal structure. We have the federal structure. We have the wider democracy in the nation. आपको पता है हमारे पास कितनी डेमोक्रेसी, आपको कोई अंदाजा नहीं. आप नेशन से बाहर निकलो, आपको पता चला है कि हम कितनी डेमोक्रेसी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं. आपको मजा है वहां बिंदास खाओ, पानी पूरी खाओ, गोलगप्पा, या हाँ जो भी स्टेटमेंट डिलीवर करना इजीली डिलीवर करो. बहुत ऐसा एक्सट्रीम लेवल का है तो कोई खड़ा मारेगा, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन एट ऑल. या माय क्वेश्चन इज, जब तक किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तब तक आप कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी डेमोक्रेसी में एंजॉय कर रहे हैं आज. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन केयर ऑफ इट, क्या कि कंप्लीट डेमोक्रेसी रहनी चाहिए. गुड. अब एक क्वेश्चन आने वाला है, एक तकलीफ होने वाली है. दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट, दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट. या नाउ कम टू द पॉइंट. इसमें से कौन सा लॉ बनाएगा? क्योंकि दोनों को पावर दिया है, इसको भी दिया, इसको भी दिया. 2 लोग को पावर देना मींस डिस्टर्बेंस वाला काम. इनकम टैक्स तो कि इसने बनाया, ये भी बनाएगा. इसने 30% वाला बनाया, ये बोलेंगे दोस्त हमको टैक्स पे करने का, हम 10% ही कलेक्ट करेंगे. या तो सभी लोग इसके साथ हो जाएंगे. दैट शुड नॉट हैपन. तो उसकी भी प्रॉपर केयर रखी गई है व्हाइल ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पावर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट.
सेंट्रल लिस्ट जो है एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 97 तक है, टोटल 97 लाइन आइटम है। इसमें जितनी भी आइटम है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो इतनी एंट्री पे ही लॉ बन सकता है, नथिंग एल्स, नो अदर एंट्री परमिटेड, ओनली लिस्ट 1 यूनियन, दैट इज नोन एज यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? यूनियन लिस्ट पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट में इस तरह से एंट्री दिया है, जितनी एंट्रीज दी है, जितनी मैटर लिखी है, उतनी मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2। एंड कॉन्करेंट पे दोनों लोग बना सकते हैं। और इनकम टैक्स इट इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। Therefore, central government got the power to make the law, and central government has made the law. Clear? Yeah. Parliament has made the law. So it is a prerogative of the parliament. It is the right. It is a power of the parliament, and parliament has exercised that power and made the law. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ना कि विदाउट फ्रेमिंग द लॉ नो गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स। तो ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, इनकम टैक्स लॉ, अब टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आ रहा था, लिस्ट 1 में आ रहा था इनकम टैक्स की एंट्री, और वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग दिस टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इनकम टैक्स इट इज अ टैक्स ऑन इनकम, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। वेरी सिंपल डेफिनेशन, टैक्स ऑन इनकम। यू टेल मी इनकम मीन व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? चलो फुल टॉस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम? जो आपने अंडरस्टैंड किया वो बोल लेगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? आप बोल दो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। बट व्हाट इज एन इनकम? टैक्स तो पता चला कि सर ये लॉ में लिखा है कि टैक्स लगाने का इनकम पे, तो इनकम क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? आज तक इनकम किसको मानते हैं? क्या सर? मनी दैट इज रिसीव्ड from the work that we have done or through the investment, that is known as income, we can say that. Okay, yeah, any other opinion? हाँ, सभी बोलो ना कुछ। मुझे एटलीस्ट आप फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हो तो मुझे आवाज भी पता चला है। Sir, it would be earning, wages, तेरी आवाज stipend. एक मिनट वेट कर, एक मिनट वेट कर, मैं फुल कर दूँ। नहीं वो 100% ही है। आज एक दिन तू थोड़ा वेट कर ले, कल तो वहां बजेगा, डोंट वरी। यहाँ जो लाइव ऑडियंस है, Sir, the net inflow of money. हाँ? The net inflow of money. Okay, inflow of money, that is my income. चलो मैं आपको एक फुल टॉस देता हूँ, क्लू देता हूँ। Income is it is a sales, that is a net profit. Income tax should be levied on sales या net profit? हाँ, net profit. तो सिंपल है, it is a tax on income, means tax on net profit. Net profit. What is called net profit? जो प्रॉफिट नेट होकर आता है, that is called net profit. Yeah? Net profit. इतना ही होता है ना, this is my income, this is my expense. Hello, this is my income. This is, ये तो पता चलता है ना, P&L है। हाँ, P&L है. This is my income, this is my expense. Find out the net profit. Net profit is chargeable to tax. That's it. Therefore, net profit, यानी कि profit and loss account becomes a very crucial part for calculation of income tax liability. Yeah? तो पहला स्टेटमेंट मेरा ये था, the Indian Constitution is father of all the laws. Power flows from a tax can be levied by way of law, making the law. Central government has made the law, and now income tax is tax on income. Tax on income. आज के बाद याद रखना, clear cut. Income means it doesn't mean a sell. It exactly mean the net profit. Income is equal to net profit. Net profit पे टैक्स लगेगा. Forget it. जो लोग ग्रेजुएट होके आए हैं यहाँ, फाउंडेशन वाले डोंट वरी, मैं आपके साथ ही हूँ। जो लोग ग्रेजुएट होके यहाँ बैठे हैं, उसके लिए एक ही मिनट में मैं आपको माइंड क्लियर कर दूं। क्या आपने हाउस टोटल 5 एड की इनकम हम पढ़ने वाला है, यहाँ 5 एड है जो मेरे बेसिक एड माने जाते हैं। 5 का कैलकुलेशन हमारे लिए क्रूशियल है। इंडिया में जो इनकम जनरेट हो रही है नॉर्मली ये 5 एड में टैक्सेबल होने वाली है। मैं आपके सामने 2 मिनट में पहले रखता हूँ, एड रखता हूँ 5 सैलरी इनकम। आज इंडिया में सेकंड हाईएस्ट
टैक्स कलेक्शन सैलराइज पर्सन के पास से आ रहा, दे आर पेइंग द टैक्स, इनकम टैक्स। जो लोग सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इनकम वुड बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। व्हाट इज कॉल्ड सैलरी इनकम? जैसे एक एक लाइन डिलीवर करो फटाफट, इसमें काफी ऑडियंस बैठी है, एक बार ट्राई करो, सभी लोग बोलना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलरी इनकम? जब आप सैलरी इनकम वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? सैलरी कब मिलती है? जॉब करते तो वहां जाते हैं तो हाँ, नहीं अभी तो वर्क फ्रॉम होम में भी मिलती है। हाँ, या सैलरी इनकम, हाउ कैन यू मींस व्हेन कैन यू से दिस इज माय सैलरी इनकम? जॉब करता हूं तो मैं कहता हूं ना सैलरी इनकम, ऐसा? हेलो यार, in return of the work, of whatever work that we do and whatever we get in return for the work that we have done for an organization, that would be considered as salary. And whatever we are getting in return. So being a chartered accountant, I am a practicing chartered accountant. I advise to my client, I am doing the work, I am receiving the income, that is my business income, that is not my salary income. आपकी सभी कंडीशन फुलफिल है? या सर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन पेयर एंड पेई, द पेयर एंड पेई। इफ द रिलेशनशिप इज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मीनिंग दैट माय प्रिंसिपल एंड एजेंट, एम्प्लॉयर इज माय प्रिंसिपल, आई एम द एजेंट। आपने हाँ फाउंडेशन में भी पढ़ा ही होगा डेफिनेट, बीकॉम वाले ने भी पढ़ा होगा, एजेंसी लॉ नहीं पढ़ा? एजेंसी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं आता था? बेसिक सब इसमें एजेंसी आती थी, एजेंट। हाँ, यहाँ देखो, प्रिंसिपल टू एजेंट, then would be treated as employer-employee relationship. And whatever I am receiving from my employer, including Ashirwad, that would be chargeable to tax under that salary. That would be chargeable to tax under that salary. मेरे एम्प्लॉयर के पास से कुछ भी मिलता है, that would be taxable under that salary. You tell me one thing, एम्प्लॉयर के पास से क्या क्या मिलता है? चलो मैं आपके साथ हूँ, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, फैसिलिटी मिलती है ना, कार फैसिलिटी, ड्राइवर फैसिलिटी, फलाना फैसिलिटी, या मोबाइल फैसिलिटी, एवरीथिंग, या दिस आर द फैसिलिटी। तो प्रैक्टिकली चार चीज मिलती है, नजदीक से बोलूं तो बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ये बेसिक कंपार्टमेंट। अलाउंसेस, नंबर ऑफ अलाउंसेस आई रिसीव। नंबर 3, इट इज अ परक्विजिट्स, पर्क्स, फैसिलिटीज। एंड नंबर 4, रिटायरमेंट बेनिफिट। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलता है एम्प्लॉयर के पास से, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पीएफ मिलता है ना सर? अभी तक तो मिला नहीं, कैसे पता? हाँ, नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो चार चीज आपको मिल रही है एम्प्लॉयर के पास से, दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरी। तो हम सैलरी चैप्टर में चार की टैक्सेबिलिटी डिटेल में चेक करने वाला है। जब भी मैं उस पे अटैक करूंगा, ये चार पे अटैक करूंगा, या और ये तो वो सीखना, उसकी टैक्सेबिलिटी सीखना, ये तो हम खेलते खेलते सीख लेंगे, डोंट वरी। नंबर 2, कम टू द एचपी। हाँ, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी। ये फालतू एड है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली फालतू एड। गवर्नमेंट, व्हाई दे हैव एंटर्ड इनटू द लॉ? गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, इफ यू let out the house property, if you give it on rent, rental income, whatever you are receiving, that would be chargeable to tax under that HP. I repeat, मेरे पास घर है, मैंने किसी को रेंट पे दिया, मुझे रेंट मिलता है, रेंट would be chargeable to tax under that HP. मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग किसी को रेंट पे दिया, रेंट जो मिल रहा है, that is chargeable to tax under that HP. मेरे पास ऑफिस है, ऑफिस मैंने रेंट पे दिया, रेंट मिलता है, that is chargeable to tax under that HP. मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने रेंट पे दिया, रेंट आ रहा, नो, प्लांट एंड मशीनरी थोड़े एचपी। हेलो, हाँ बता, चालू करिए। माय क्वेश्चन इज, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, whether it is commercial, residential, factory building, any building. If there is an house property and I'm giving it on rent, and whatever amount I'm receiving as a rent, that would be chargeable to tax under that HP. Clear? तो आज के बाद याद रखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट एचपी में हम टैक्सेबल करने के लिए जाएंगे। एचपी में जस्ट विद इन आवर, आप कितना बीकॉम में काफी आवर्स पढ़ के आए होंगे, तो भी
आधा ही पढ़ के आए होगे, आधा भी नहीं पढ़ा, बट मैं यहाँ 60 मिनट का ही लेक्चर डिलीवर करूंगा, एक ही लेक्चर डिलीवर करूंगा स्ट्रॉन्ग। एक स्टूडेंट मेरे ऑडियंस में से ना हो कि जो एग्जामिनेशन वाला अटेंड ना कर पाए, दैट इज माय प्रॉमिस फॉर एचपी, ओनली 60 मिनिट। આપણી પાસે પેલી કોરોનાની રેડીમેડ પડી ગયું જ પડેલી, મોર્નિંગ બપોર અને સાંજ મેટર ક્લોઝ. નાઉ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ, नहीं जो बुक में है, बुक से भी मैंने मेरा खुद का एक फॉर्मूला है, इसमें R&D है, वो फॉर्मूला पावरफुल काम कर रही है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको गलती करनी है तो भी यू कैन नॉट। नाउ नंबर थ्री, इट इज माय बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, आज आपको पता है इंडिया में 5% लोग बिजनेस में बिलीव कर रहे हैं, जो रिस्क उठाना चाहते हैं। बिजनेस एंड रिस्क दोनों को डायरेक्टली कनेक्शन है। मैं यहाँ बिजनेस का टीचर नहीं हूँ, डोंट वरी। मैं बिजनेस में से जो प्रॉफिट होता है ना, उसको टैक्सेबल कैसे करना है उसके लिए मैं यहाँ हूँ। या बिजनेस प्रॉफिट, आज फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस, आउट ऑफ द 14 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स की पूरे साल की टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की कितनी है? 14 लाख करोड़। कितनी? आज से फिट कर लो, 14 लाख करोड़ दिस ईयर। अभी जो ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, इट इज 14 लाख करोड़। नाउ out of the 14 lakh crore, 8 lakh crore plus income coming from PGBP chapter, business income, profit and gain from business or profession। आप ये चैप्टर का नाम सुना है, नहीं सुना है, forget it। बिजनेस इनकम, आज जो मार्केट में बिजनेस हो रहा है उसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इट्स अ ह्यूज इन क्वांटम, और वहां से टैक्स का फ्लो ज्यादा हो रहा है। 30% टैक्स रेट, आपको पता है ना, 30% टैक्स रेट। TCS, अगर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है, TCS इट्स टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनी है ना, TCS हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, टाटा ग्रुप का इंजन है। या समझ लो 10,000 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो डेफिनेटली 3,000 करोड़ डायरेक्टली एज मींस दे विल हैव टू पे एज एन इनकम टैक्स। रिलायंस इंडस्ट्री इतना प्रॉफिट पे कर रही है, इसका टैक्स इतना आ रहा, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% डायरेक्ट यहाँ आ रहा है एज अ बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस आज इंडिया में काफी कम है, तो भी काफी कम है। ये जो आज 8 लाख करोड़ है ना, उसको 80 लाख करोड़ तक लेके जाना है। आज जो 8 लाख करोड़ रेवेन्यू आ रही है ना बिजनेस में से, उसको 80 लाख करोड़ तक ले जाना है, 80 लाख। देन वी कैन से नाउ माय नेशन इज अ डेवलप्ड नेशन। बी क्लियर, एक ही लाइन में मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज। आज चलो मैं वो हेड से 1 मिनट बाहर निकलता हूँ, हेड को साइड में रखना है थोड़ी देर। हमारा बजट आता है, आपको पता बजट आता है? बजट वर्ड सुना? बजट नहीं सुना, उसने बुडगेट सुना होगा। बजट में ना BUDGET, बुडगेट। या नहीं, काफी लोग उसको बुडगेट बोलते हैं, बुडगेट। चलो एक जोक्स कहता हूँ। अच्छा, मेरी मास्टरी इनफेक्ट जोक्स में है, DT में तो कम है। आप आपके टीचर को पहचानते हो ना? हेलो, पहले जोक्स कह देता हूँ, बाद में बताता हूँ। मैं बेसिकली MSU हॉस्टल में से बड़ा हुआ। MSU हॉस्टल मेरा सेकंड होम था, मैं वहाँ ही पढ़ के बड़ा हुआ। मेरा CA, I qualified CA in 2007, CS in 2006. I qualified NET also to become a professor in 2006. वो पीरियड में मैं हॉस्टल में ही था। मेरा काफी अच्छा वो टाइम पे भी कमांड अच्छा, डायरेक्ट टैक्स पे अच्छा ही कमांड रहा मेरा ऑलवेज। तो मुझे हॉस्टल में, मैं एक दिन मॉर्निंग में आया, वो न्यूज़पेपर वाला आता है ना, पूरे हॉस्टल में न्यूज़पेपर आता है। तो एक लड़का पढ़ के, उसको लगता है कि अतुल भाई ब्रिलियंट है, तो अतुल भाई के वो पूरा पेपर देखा, मगर वो ये बुडगेट क्या है? वो बुडगेट नहीं है, बजट है। माय क्वेश्चन इज, जिसको बजट में पता चलता है, बजट में, बुडगेट में पता चलना चाहिए बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। या चलो, हाउ विल यू डिफाइन द बुडगेट बजट? हाउ विल यू डिफाइन द बजट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? आप थोड़ा हिम्मत तो करो। मेरे लेक्चर में ना कोई पनिशमेंट नहीं हो, नेवर, नो पनिशमेंट। मैं एकदम फ्री माइंडेड टीचर। आपका हर एक डाउट एंटरटेन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। आप में ताकत चाहिए पूछने की, लिख लो जहां लिखना है। और वो 10 क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं 10 उतनी ही एनर्जी के साथ आंसर दूंगा।
हाँ? आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा, बट आपको पता चले उसकी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। डायरेक्ट टैक्स में यानी कि बड़ौदा में फर्स्ट नेम यही है, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, यानी कि when the matter is for the direct tax, बस पछोड़ जाओ। My question is, आपको आपके सामने समंदर ही खड़ा है, समझ लो सभी फैकल्टी ऐसे ही आएगी, बट मैं डायरेक्ट टैक्स एरिया में तो मैं आपको बोलता हूँ अगर आप प्रैक्टिस में से, मार्केट में से, बुक्स में से, कहाँ से भी आप पढ़ोगे, कोई भी जगह पर अगर आपका डाउट एकदम स्मॉल सिली डाउट है ना तो भी पूछ लेना। डाउट ये डोर के अंदर ही, उसकी बाहर डाउट नहीं जाना चाहिए। अगर आप घर डाउट लेके जा रहे हो ना तो ये टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं, मेरा भी कोई मतलब ही नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, मेरा धक्का हुआ ऐसा लगेगा, पता चलता है आपको, बिंदास पूछने का सर यहाँ पता नहीं चला ये क्या था। गेटिंग माय पॉइंट? ये थोड़ा ऑनलाइन होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, मगर ये फिजिकल में तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो ना, व्हाई नॉट, कि सर यहाँ तकलीफ है ये, तो वो टाइम पे चलेगा, परफेक्ट चलेगा क्या? हाँ, budget, budget. Yeah? In case of the budget, it's nothing but it is an estimate for the next financial year. Estimates of the income and expenditure of the central government for the next financial year. Normally, it comes on first Feb every financial year. First Feb. अभी जो first Feb 22 पे जो बजट आया, it is an estimate for the next financial year. Next financial year means Feb के बाद कौन सा year start होता? Year कब start होता? 1st April. कोई એવું ના કહેતા દિવાળી દિવસે. Now, yeah. Year starts from 1st April and ends on 31st March. Whenever I talks about the year, it always means the financial year. Yeah, 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. You tell me, चलो मैं स्पेसिफिक आता हूँ. You tell me, अभी 1st Feb 22 पे बजट आया, 1st Feb 22. तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा स्टार्ट होगा? 1st Feb पे बजट आया, 1st Feb 22. अब नेक्स्ट में कौन सा अप्रैल आ रहा? अप्रैल 22. हाँ, 1st April 22 to 31st March 23. 22-23 फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बजट आया है. क्लियर? या वो नेक्स्ट ईयर में कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मिसेस सीतारामन ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया कि इतनी इनकम होगी टैक्स में से सेंट्रल गवर्नमेंट की, इतना खर्चा होगा. यू टेल मी, बजट में दो ही पार्ट है. प्रॉफिट, बजट इज नथिंग, इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रैक्टिकल. सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएनएल है. कहां से इनकम आएगी? गवर्नमेंट की इनकम कहां से आती है? टैक्स. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास से टैक्स ही इनकम है. टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज अ जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स, आज के बाद किसी के माइंड में ये भी भ्रम ना रहा, डायरेक्ट टैक्स मींस इट इज इनकम टैक्स. वो तो पता है ना, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. क्यों डायरेक्ट लगता है? मेरे पास 1000 क्वेश्चन है. चलो ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख देता हूं. व्हाई इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स? सर क्योंकि हर एक की इनकम अलग अलग होती है, वो इनकम के बेसिस पे, हाँ, मतलब हर एक जितना इनकम करेगा वो अर्न करेगा वो अलग करता है, तो डिफरेंट रेट्स उसके प्रमाण देते हैं. जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो उसकी रेट उसके होगी. पर जीएसटी मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए रेट सबके लिए सिमिलर होती है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रेट डिफर करेगी इनकम के अकॉर्डिंगली. हाँ, ठीक है बेटा, ठीक. एनी अदर ओपिनियन फ्रॉम दिस ऑडियंस? व्हाई इनकम टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स? सर बिकॉज इन डायरेक्ट टैक्स, एक मिनट बेटा, एक मिनट. हाँ, burden of tax cannot be shifted, transferred to other person. टैक्स का बर्डन होता है? हाँ सर, टैक्स का तो सबसे बड़ा बर्डन है. तो यू मीन टू से बाकी सब टैक्स में इट कैन बी शिफ्टेड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड? Indirect tax is on final consumer. Final consumer cannot shift. Okay, for final consumer it is a direct tax, you mean to say? If the burden is the criteria,
तो लास्ट कंज्यूमर बेचारा जब खुणा में बैठा हो तो बस अब धक्को ना मारो बस जो लास्ट में बैठा है means he has to bear the tax. So for that it becomes a direct tax. No. तो चलो खाली बर्डन ऊपर नहीं चलिए अपने या why income tax is known as the direct tax, only tax. डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स लॉ. नो अदर टैक्सेस इन इंडिया, इन द एंटायर नेशन. जो थे वो सभी निकल गए. वेल्थ टैक्स था, एबोलिश. गिफ्ट टैक्स था, एबोलिश. आज गिफ्ट टैक्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ द आईओएस, बट सेपरेट कोई टैक्स नहीं है. आर गेटिंग माय पॉइंट? पहले था एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, एबोलिश. आज एक ही टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, तो मेरे सिलेबस में भी वही है, पूरे इंडिया में एक ही है. इट इज एन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स यहां देखो, व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. सब लोगों एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला. इन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आई एम अ सेलर ऑफ दिस मोबाइल फोन. आई हैव द मोबाइल फोन शॉप. आई सोल्ड दिस मोबाइल फोन टू हर फॉर ₹50,000. 50,000 plus 18% GST because seller collect the tax from the customer. 50,000 plus 18% GST, 9,000. वो मीनिंग तो 59,000 में मैंने उसको दिया, उसके पास से मैंने 59,000 कलेक्ट किया, उसमें 9,000 टैक्स है. सी इज एंड कंज्यूमर. मैंने उसके पास से 9,000 कलेक्ट करके मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया एज अ बिजनेसमैन. जीएसटी इस तरह से चलता. Seller will collect tax from the customer and will pay to the government. Seller will collect tax from the customer and will pay to the government. Yeah. इसमें टैक्स पे बेयर किसने किया? किसने बेयर किया, मैंने या उसने? कस्टमर. गवर्नमेंट को पे किसने किया? मैंने पे किया. हेलो, या जो पर्सन बेयर कर रहा है टैक्स, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली. दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. एंड इनकम टैक्स में the person who has earned the income, आपने सैलरी इनकम अर्न किया, 1 करोड़ आपकी सैलरी है, 30 लाख आपको ये आपके पॉकेट में से डायरेक्ट गवर्नमेंट. दिस इज डायरेक्ट टैक्स. क्लियर? the person who bear the tax pays the tax to the government. The person who bear the tax doesn't pay tax to the government. She or he pays tax to the businessman back to back pay to the government. This is indirect and this is direct connection है आपका ऊपर तक. In case of the direct taxation. So this is why this is known as direct. मैं आपको आऊंगा उस पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे आऊंगा बाद में. अभी हम बजट में से निकले थे. बजट में 2 पार्ट है, यहाँ 2 जगह से इनकम आ रही है. इट इज एन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स में से, डायरेक्ट टैक्स में से 14 लाख करोड़ की रेवेन्यू आ रही है, एंड 14 लाख करोड़ बाकी सभी में से आ रहा है. जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वो टोटल मिला के 14 लाख आ रहा है. टोटल बजट साइज इज 28 लाख करोड़. 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ बजट साइज है हमारी इंडिया की. જે કાંઈ કરવું આમાંથી કરવાનું, આમાં ઘર ચાલવું જોઈએ. टोटल इज 28 लाख करोड़ द इंडियन गवर्नमेंट साइज. उसमें से ये गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? ये इनकम साइड है गवर्नमेंट की. एक्सपेंस साइड क्या है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है? एजुकेशन में काफी लोड्स में एक्सपेंडिचर कर रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर, टकाटक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी. वो खड़ा होता है चलेगा, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर टकाटक चाहिए. नंबर 3, डिफेंस इज अ बिगेस्ट कॉस्ट. डिफेंस में चाहिए ही चाहिए. डिफेंस तो पावरफुल ही चाहिए ना नेशन का. हेल्थ केयर, अभी कोरोना में खबर पड़ी गई આપડી, ખુલ્લું થઈ ગયું બધું કે ના આપણી પાસે કઈ છે નહીં. આ તો આપણી ઓલા ઉકાળા બુકાળા ને પી પીને આપણે સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા, અધરવાઇઝ આપણે ખાલી થઈ જાય. My question is, government is expensing on education, defense, health, infrastructure, agriculture. सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर पार्ट. एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट काफी एक्सपेंडिचर कर रही है, रूरल डेवलपमेंट में कर रही है. ऐसी काफी गवर्नमेंट के पास एजेंडा है जिसमें गवर्नमेंट खर्चा कर रही है. ये जो इनकम आ रही है वो सभी में एलोकेटेड होती है. इतना खर्चा यहाँ होगा, यहाँ इतना होगा, यहाँ इतना होगा. ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है. बाद में अकॉर्डिंगली सभी डिपार्टमेंट को खर्चा करने का. आपको 1,000 करोड़ का बजट दिया है एजुकेशन के लिए, तो बाद में 1,000 करोड़ में आपको खत्म कर देने का. क्लियर? या बजटेड फिगर क्रॉस नहीं हो सकता. दैट्स इट. तो बजट की प्रोपोर्शन में ही ये सब कुछ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर होगा. तो गवर्नमेंट की 2 साइड से इनकम आ रही है.
एक्सपेंडिचर का तो काफी जगह है, काफी पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। या जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, जनरल नॉलेज, आवर बजट साइज इज 28 लाख करोड़, समझ लो 25 लाख करोड़ रफली, 25 लाख करोड़। व्हाट इज द साइज ऑफ द यूएस बजट? Yeah, it is 250 lakh crores. This is 25. 250 lakh crores. Size of the US budget. Hello, 20% is passed for the defense. 250 लाख करोड़ માંથી 20% is 50 લાખ કરોડ નું તો ડિફેન્સ બજેટ હોય લોકો પાસે. આપણું 2 વર્ષનું બજેટ થાય ટોટલ બજેટ. પછી આપણે કહીએ કે યુએસ વાળા ગમે તેની સાથે વોરમાં ઉતરે એટલે 24 કલાકમાં વોર કમ્પ્લીટ કરી દે. કરી જ દે ને દોસ્ત, અમને આપો એટલે અમે કરી દઈએ. भाई क्वेश्चन है, हाँ तो नहीं, काफी लोग को यहाँ लगता है कि हम डेवलप नेशन में जी रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ, अभी तो हमको एफर्ट्स डालना है। वंस वी रीच द 50 लाख 50 लाख प्रोफेशनल જોઈએ એના માટે આ દેશમાં 50 લાખ પ્રોફેશનલ જોઈએ જો દેશને સુપર પાવર બનાવવો હોય તો. ટુડે વી હેવ લેસ ધેન 5 લાખ પ્રોફેશનલ્સ. જે દિવસે 50 લાખ પ્રોફેશનલ આ દેશ પાસે હોય ને તે દિવસે દેશ ડેવલપ નેશનની સાઇન માટે કેપેબલ હોય. હેલા અને આપણી બજેટની સાઈઝ આ 25 લાખ કરોડ થી 250 લાખ કરોડ સુધી લઈ જવી પડે. ધેન વી કેન રૂલ. આ લોકોનો 250 લાખ કરોડ તો ટેક્સ રેવન્યू આવે, 250 लाख करोड़. पता चलता है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ये फेंक नहीं रहा हूँ. वो यूएस वाले ऐसे ही फेंकते हैं, नहीं वो ऐसे फेंकते हैं बम ये तो खाली कर देते सब कुछ. दैट इज अ फंडामेंटल रीजन. क्या आपने तो 25 फॉरगेट इट. एक बार ये भी डिफरेंस भी हम बेयर कर लेते हैं, 250 एंड 25. उसके पास पॉपुलेशन 25 का, मेरे पास 150, उसमें 6 टाइम हम आगे हैं एंड वहां 10 टाइम्स पीछे है, तो प्रैक्टिकली 60 टाइम पीछे है. 60 टाइम्स का गैप चल रहा, अभी भी चल रहा है. और तो भी मैं ऐसा मानता हूं क्या, अभी जो पूरा बोलते हैं ना बैकग्राउंड क्रिएट हुआ है, आज यंग जनरेशन काफी एजुकेशन के लिए जा रही है, बिजनेस के लिए जा रही है, तो सर्टेनली नेक्स्ट 10 to 20 years लगेगा. 20 years में we will cross that milestone. Yes, हाँ ठीक है, come to the point. तो that was अब यहाँ देखो, ये जो बजट आता है फाइनेंस एक्ट, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर दैट इज क्लियरिफाइड. अब वापस आ जाओ, मैं निकला था पीजीबीपी से. पहला मैंने पढ़ाया था सैलरी इनकम. इफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप इज ऑफ पेयर एंड पेई, के बीच में रिलेशनशिप इज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, then whatever you are receiving that would be chargeable to tax under that salary. That is first statement. Statement 2, whatever rental income you are receiving from the HP, house property, building, that would be chargeable to tax under that HP. And third, business income. You tell me, business and salary में difference क्या है? What is the difference? दोनों में income आ रही है. When can you say this is my business? When can you say this is my job? This is my salary. है? आपके माइंड में एज लेमन लैंग्वेज आप बताओ ना तो मुझे पता चले. ओके, आपके ऊपर कोई एम्प्लॉय હોય કે ના હોય? ओके, यहाँ देखो, in case of the business there is a principal to principal transaction and here principal to agent. आपको पता चलता है मैं क्या करता हूँ? आप कोई भी जगह पे जॉब करोगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, he is finally liable for that business. अगर बिजनेस में कल कितना भी नुकसान हो जाए तो आपको कुछ नहीं है, आप खकर निकली जवान. चलो, माय क्वेश्चन इज, जो जिसका बिजनेस एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर इज अल्टीमेटली लायबल, बट आपका खुद का बिजनेस है, समझ लो एएसएमएन कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरी फर्म है, तो जब भी मेरी ऑडिटर में अपॉइंटमेंट होती है तो सामने वाली कंपनी एंड मैं दोनों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है. उसका बिजनेस वो मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा बिजनेस ऑडिटिंग का है. तो मैं जो ऑडिट करता हूँ एज एन ऑडिटर, मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मेरी एडवाइजरी सर्विस वो लोग लेंगे, मुझे फीस पे करेंगे. प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. वो बोलेगा ऐसा मैं करूंगा, मैं बोलूंगा वैसा, नथिंग. मैं उसको एडवाइस करूंगा, बाद में करना है नहीं करना वो डिसाइड करेगा. वो बोलेगा कि सर ऐसा करो, मुझे करना है या नहीं करना वो दैट आई विल डिसाइड. प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, क्लियर? या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, डेफिनेटली द business income will come into picture. Principal to agent, salary income will come into picture.
तो प्रिंसिपल टू आज इंडिया में यानी कि 8 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू एड में से आ रही है पीजीबीपी. या द नेक्स्ट स्टेट इज इट इज अ कैपिटल गेन. कैपिटल गेन, हेलो, एक ही सा गेन, कैपिटल में से गेन होता है. सुना, नाम सुना आपने कैपिटल गेन? नाम सुना? कैपिटल फाउंडेशन से आ रहा है. बीकॉम, वेरी नाइस. नहीं सुना तो बिंदास, आई रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट. या कैपिटल गेन नहीं सुना तो बिंदास बोलना. नहीं सुना सर. कैपिटल गेन, लास्ट बेंच. कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एसेट. यू टेल मी वन थिंग. चलो मैं आपके सामने एक बाहोश चीज रखता हूँ. 2 मिनट, सब लोग मेरे साथ रहे. ऐसा किसी ने कल करवाया था? हाँ दिव्य सर. माय क्वेश्चन इज, mobile phone. You tell me, this mobile phone, whether it is possible that this mobile phone is a stock in trade for her and this mobile phone is a capital asset for him? Possible? Good. मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ. Whether it is possible, building है, particular building is a stock in trade for builder and particular building is a capital asset for teacher. Gold, third example. Whether it is possible, gold, jewelry, it is a stock in trade for CS jewelers. And for lady, यहाँ अगर गर्ल बैठी है उसके लिए it's a capital asset. Yeah, it is possible. So you tell me, on what ground it is decided whether it's a stock in trade या it's a capital asset for you? कौन से ग्राउंड पर आप डिसाइड कर? आपने, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल रखा. क्या लॉजिक, क्या फ्लो हो रहा? नेचर ऑफ in trade, it's a capital asset. मैंने आपको एक स्ट्रांगली बताया कि CH ज्वेलर्स, वो तो पता है ना CH कौन है? कल्याण, वो पूरा बच्चन फैमिली नहीं, उसके लिए पीछे पड़ा है. हेलो, या कल्याण ज्वेलर्स, उसके लिए वहां अंदर जाते हो ज्वेलरी होती काफी, मॉल में जाते हो ज्वेलरी, तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है वो. मगर आप वहां से खरीदते हो तो इट इज अ कैपिटल एसेट फॉर यू. ऑन व्हिच ग्राउंड यू आर डिफरिंग? You are different. Sir, if it is for the business purpose. Yeah, देखो, if you are dealing with the particular product on day-to-day basis, it is treated as stock in trade for you. It is a stock in trade for you. If you are not dealing in day-to-day life, it is not a stock in trade for you. It is a capital asset. Number 2, stock in trade is held for sale. Capital asset is held for use. I repeat with emphasis. Stock in trade is held for sell and this is held for use. You tell me, builder, CS ज्वेलर्स ही चालू रखो. CS ज्वेलर्स, उसके पास जो ज्वेलरी है वो सेल के लिए है या यूज के लिए? सेल. इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड के सेल में से जो भी प्रॉफिट होता है, इट इज अ बिजनेस इनकम, इट इज अ पीजीबीपी इनकम. एंड आप वहां से 1 किलो गोल्ड लेके आए थे. गोल्ड नहीं. 1 किलो गोल्ड लेके आए थे वहां से, आपके पास इन्वेस्टमेंट में पड़ा था, जब जरूरत पड़ी आपने वो बेचा. इट इज अ कैपिटल एसेट फॉर यू. कैपिटल एसेट फॉर यू बिकॉज इट वाज नॉट हेल्ड फॉर सेल. इट इज अ कैपिटल एसेट फॉर यू. और आप जब भी सेल करोगे उसमें से जो गेन होगा, दैट इज कैपिटल गेन. इट इज टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन चैप्टर. कैपिटल गेन चैप्टर. क्लियर? या. नंबर 2, बिल्डिंग. बिल्डर देखो ना, बिल्डर आज मार्केट में बिल्डर है, कितनी बिल्डिंग ही बिल्डिंग. ये 10 बिल्डर ग्रुप, उसके पास काफी टावर A, B, C, D पूरी लाइन लगा देते हैं वो लोग. ऑल द फ्लैट्स आर हेल्ड फॉर सेल. इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड. वो फ्लैट सेल करने में से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट बिजनेस इनकम, पीजीबीपी फॉर दर्शन बिल्डर. बट एज अ टीचर, ये समझ लो हमारे पास ऑफिस है, ये ऑफिस दिस इज हेल्ड फॉर सेल या यूज? कल अगर हम ये सेल करेंगे तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा, दैट इज कैपिटल गेन. तो आज के बाद एकदम क्लियर, नो कॉन्फ्लिक्ट. स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट. सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस इनकम. सेल ऑफ कैपिटल एसेट, capital gain. How can you define whether it is stock in trade or capital asset? Held for sell, held for use. That's it.
क्लियर? या चलो हमारी एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल ले लो. हमारी फैक्ट्री चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लान चल रहा है. इसमें से सेल के लिए क्या होता है? मटेरियल हम मोबाइल फोन बना रहे हैं, तो सेल के लिए क्या होता है? मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन जो है ना, उसका पार्ट्स एंड मोबाइल फोन, दैट इज माय स्टॉक इन ट्रेड. रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर फॉर यूज. Building, plant and machinery, furniture, air condition, all are my capital asset. And whenever I sell this capital asset, it is chargeable to tax under that capital gain. And whenever I am selling this mobile phone, it is chargeable to tax under that business income. Last bench, 100% clarity? कोई ने कहीं फुल टॉस पड़े ऊपर थी जाए वो नहीं नहीं स्पीड बीट બધું બરાબર बाकी આવી જશે डोंट वरी. लास्ट बेंच, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? वेरी गुड. मिडिल में सब दिखेगा, लास्ट में से दिख रहा था. अगर आपको तो अदरवाइज वो चश्मा बदलना पड़ेगा. वेरी गुड. चल, इट वाज द कैपिटल गेन. एंड लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पहले 4 हेड में जो नहीं है इनकम, वो 5वें हेड में टैक्सेबल कर दो, क्योंकि 5 ही है सर. अब जो यहां से निकला तो वो गया. देखना अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है. एवरीबॉडी, सैलरी, एचपी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, ये 4 हेड में पर्टिकुलर इनकम, इंडिया में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, ये 4 में से कोई एक जगह पे फिट हो जानी चाहिए. और नहीं हुआ तो इट इज नॉट सैलरी, नॉट एचपी, नॉट बिजनेस इनकम, नॉट कैपिटल गेन. तो आईओएस का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो अदर सोर्स मींस बाकी सब कुछ यहाँ नो. अभी एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट आप इतना माइंड में फिट कर लो. यस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. किसी के पास से गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला, गिफ्ट 50,000 से ज्यादा गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल है, ऐसा मार्केट में अफवाह है. इनफैक्ट नहीं, दैट इज फाइन, बट वी कैन प्लान मोर देन दैट. माय क्वेश्चन इज, तो गिफ्ट है, इट इज अ सैलरी? गिफ्ट इज अ सैलरी? इट इज अ रेंट? इट इज अ बिजनेस इनकम? जो गिफ्ट आप लोग बिजनेस हो तो रोज आपको गिफ्ट. एंड नंबर 4, इट इज अ कैपिटल गेन? नो. तो देयरफॉर 4 हेड में उसकी जगह नहीं है, तो उसके लिए 5th हेड में जगह की आईओएस में. बट फॉर योर क्लैरिफिकेशन मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं. इनकम टैक्स लॉ में 2 कैटेगरी की रेवेन्यू है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. कौन से? यू टेल मी. रेवेन्यू रिसिप्ट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, एचपी, बिजनेस इनकम. जो नजदीक से देखो, सैलरी तो रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस दिखता है? रिकरिंग इन नेचर एंड नो रिकरिंग. कैपिटल रिसिप्ट मींस